Bismillahirrahmanirrahim. Today we will go to study about case study research, and we have multiple options to study. But we will start from the uh, best or most very critical or very famous case study writer, who is called Yin. Yin is the last name of Robert K. Yin. He wrote case study research as a serious research method, case study as a serious research method in 1980s, 1981. So from that time, he was writing about case study research, and currently we can say that he is writing almost 40 plus years about the case study research. So we can say that he is very famous about case study, and everyone who write about case study or who use case study research method almost refer Yin as a source, base source. But according to Yin, case study research is not only qualitative case study, but it is also can be quantitative, can be qualitative, or can be mixed. According to him, it is a total comprehensive approach. But most of the people understood that case study is only qualitative case study, but it is not according to Yin 2018. So in 2018, he published his sixth edition of case study research design and methods, and in this edition, he mentioned also he mentioned in earlier editions, he mentioned the case study six processes. So we can say that this is a comprehensive picture about the case study research which presented by in 2018. So we can see one by one. So first of all is planning. So planning is the base of everything. We can say that if we plan uh, in English, there is very famous saying that if you fail in your plan is fail. So it means we have to plan uh, very thoroughly and very uh, critically, and then we have to move towards design. So there are multiple design about case study research. We can say that we can study case study or we can design our case study research as a single case or as a multiple case. Similarly, we can focus only one issue or multiple issues. So there can be multiple designs of the case study research. Then we have to prepare about the case study, and then we have to prepare about the case study, and in this preparation we can say that there will be need of how we have to develop protocol. We have to develop interview protocol, a case study or case study protocol or similar things. And also we have to define that which audience we are going to interviewed, and which document we are going to review, and which phenomena we are going to observe. So there are multiple data collection option in within the case study. And case study, normally we use multiple data case about the case. So we have to prepare accordingly. Then we go to the collect. uh, Everyone can observe that there is one-sided arrow planned to design, then design to prepare one-sided arrows. But between the prepare and collect, there is two-sided arrows. Why? Because in the case study research, according to Yin 2018,
we have to collect data, but also we improve our preparation. For example, we prepared our case study protocol, we prepared our qualitative case study or quantitative case study or something, but when we started collection we found that this protocol is not enough. We have to do something else, or we have to minimize, or we have to extend or expand. So this preparation and collection is, especially in starting, it will be simultaneously and both sided. It means preparation will be improved with the help of collection, and collection will be improved with the help of preparation. So this is two-sided arrow. Similarly, we can another thing say that design and collect is also after the collection data. During the data collection we also improve uh, we सर इसका सिंगल एरो तो हमें सवाल कर सकता हूँ उस बीच में? yes, yes, why not? सर बीच में सवाल कर ये Yes, बीच yes, why में not? ये जो सिंगल एरो तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन ये डबल एरो समझ में नहीं आ रहा। देखिए नंबर 1 जैसे प्लान टू डिज़ाइन, डिज़ाइन टू प्रिपेयर जी जी और उसके बाद कलेक्ट, कलेक्ट से जो इसका एरो दोबारा पीछे जा रहा है, इसकी क्या वजह है? जी जी हाँ, यही बात मैंने अभी कही थी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इसमें एरो प्रिपेयर और कलेक्ट के अंदर एरो टू साइडेड है। इसका मतलब ये है कि प्लान और डिजाइन के दरमियान या प्रिपरेशन के दरमियान हमारे पास जो स्मूथ वे में काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम कलेक्शन पे जाते हैं, डेटा कलेक्शन पे जाते हैं, तो जी, हम प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट महसूस कर सकते हैं। जिस तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च की खास बात यह है कि इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में आप चीजें इम्प्रूव करते हैं वक्त के साथ साथ, और आपकी रिसर्च भी कंटिन्यू चल रही होती है। तो इसमें जो है यही मामला है। आप मिसाल के तौर पर डेटा कलेक्शन करने गए, आपने इंटरव्यू किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू किया, उसके नतीजे में आपको अंदाजा हुआ जो प्रिपरेशन के फेज पे आपने इंटरव्यू प्रोटोकॉल बनाया था या क्वेश्चंस बनाए थे, उन क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन क्वेश्चंस में बेहतरी की जरूरत है। तो फर्दर सेकंड डेटा कलेक्शन से पहले, दूसरे केस को स्टडी करने से पहले, या उसी केस के दूसरे एविडेंस को स्टडी करने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपने प्रिपेयर करने के बाद कलेक्शन शुरू की थी, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्शन की मदद से अपने आप आपने अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी, अपनी इस सिचुएशन को बेहतर किया है। तो इसका ये मतलब है टू साइडेड एरो का। सही है। जी, जी। और इसी तरह इस कलेक्शन के जी, जी। मौके पर ही बाज औकात ऐसा भी होता है कि आपको अपनी स्टडी का डिजाइन ही चेंज करना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी स्टडी डिजाइन की थी कि इसको सिंगल केस जो है वो हम स्टडी करेंगे, या आपने और लेकिन जी, जी। सिंगल केस में कब फ्रूटफुल होता है, जब आपके पास बहुत ही यूनिक केस हो, कोई ऐसा केस हो जो यूनिक हो बिल्कुल। लेकिन जब आप डेटा कलेक्ट करने गए तो आपको पता चला कि यार इसकी यूनिकनेस मैं साबित कैसे करूंगा जब तक मैं किसी नॉर्मल केस को नहीं लूंगा। मिसाल के तौर पर आपके वाले केस में आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है वो आप गए स्टडी करने। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने गए तो आपको पता चला कि ये तो वाकई बहुत यूनिक है, लेकिन इसकी यूनिकनेस, इसकी इसके आप कह लें कि इसकी जुदागाना हैसियत या इसकी इम्पोर्टेंस आप साबित ही जब कर सकेंगी जब किसी आप नॉर्मल या नॉन यूनिक केस को भी सामने रखेंगे, नॉन यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी सामने रखेंगे, तो फिर जो है ज्यादा बेहतर तौर पे आप अपनी बात कर सकेंगे। तो इसका मतलब यही है कि ये जो है ये कलेक्शन के टाइम पे ही आप अपने डिजाइन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रिपरेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू। जी, आप जी। लोग मेरी बात समझ पाए हैं, या मैं आपकी अपनी बात आप समझा पाए हूँ? जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जी, समझ गया हूँ, समझ गया। Okay, so we will continue. Collect after collect, there is analyze phase. So there is also two-sided arrow. It means कलेक्शन और एनालाइज ये दोनों भी पैरेलल चलेंगे। इसमें भी जो है वो आपको बैक वक्त जो है वो दोनों चीजें, मिसाल के तौर पर आपने डेटा कलेक्शन शुरू किया, एक आपने इंटरव्यू कर लिया या एक डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, अब उसको एनालाइज भी साथ साथ करते जाएंगे। यानी डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट कर लिया, वो कलेक्शन के अंदर आ गया।
अब उसको पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स निकल रहे हैं, और जो है वो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके सामने है तो उसको कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी इदारे का आपने जो है वो वेबसाइट रिव्यू की, दूसरे इदारे की भी वेबसाइट रिव्यू की, दोनों को कलेक्ट करके आपने जो है एनालाइज शुरू किया, या एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, दूसरा इंटरव्यू भी कंडक्ट किया, तो अब इनको एनालाइज भी साथ साथ शुरू करते रहेंगे। तो ये डेटा कलेक्शन और डेटा एनालाइज टू साइडेड एरो है, तो ये पैरेलल चलेंगे, और प्रिफरेबल यही होता है विद इन एज सून एज पॉसिबल जो है वो आप जो कलेक्टेड डेटा है क्वालिटेटिव रिसर्च का, उसको एनालाइज की तरफ ले जाएं। और एट द एंड जो है वन साइडेड एरो है शेयर का, लेकिन शेयर जो है ये एक तो फाइनल स्टेज पे शेयर है एनालाइज के बाद, इसको आप कह सकते हैं फाइनल रिपोर्ट, और एक प्रिपेयर के बाद भी एरो था। और इस एरो का मतलब जस्ट ये था कि आप जब प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी तैयारी को डेटा कलेक्शन से पहले तक, जब भी जो है वो आप इसको शेयर करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ, मुमकिन है बाज इदारों में जो है वो अगर थीसिस वगैरह है तो उस सूरत में जो है वो आपके पास जो है वो कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम भी होता है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी मैटर कर रही होती हैं। तो ये जो है ये सिर्फ सी अप्रोच थी यन की, ये रॉबर्ट के यस इन जिसका पूरा नाम है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं फर्दर आपको कुछ अप्रोचेस फर्दर भी बताता हूँ, जिसके हवाले से जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि रॉबर्ट के यिन का जो अप्रोच है वो ये है कि केस स्टडी इज नॉट द ओनली क्वालिटेटिव केस स्टडी। केस स्टडी कैन बी क्वालिटेटिव, कैन बी क्वांटिटेटिव, एंड कैन बी मिक्स्ड। सही है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों मिक्स भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं या कुछ राइटर्स हैं जो एम्फेसाइज करते हैं कि केस स्टडी शुड बी ओनली क्वालिटेटिव। एंड यिन आल्सो, रॉबर्ट के यिन खुद भी इस बात को तस्लीम करता है कि केस स्टडी जो है वो मोस्टली क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि आप इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन यूज कर रहे होते हैं, और क्वांटिटेटिव के अंदर जो है वो नॉर्मली ये सहूलत आपको नहीं होती कि आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन यूज भी करें और उससे कोई कोई समर आवर नतीजा भी जो है वो निकाल सके। निकाले तो ये जो है ये क्रिसवेल, जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल जो है ये बेसिकली इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि क्वालिटेटिव इंक्वायरी और रिसर्च डिजाइन चूजिंग 5 अप्रोचेस, इनके मुताबिक जो है क्वालिटेटिव इंक्वायरी के जो है 5 अप्रोचेस हैं, उनमें से जो केस स्टडी है ये एम्फसाइज करते हैं कि ये जो है ये केस स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। सही है, जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्रिसवेल के बुक से है, स्टडी रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच, ये इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो है हमने इस बात को मेंशन किया कि रॉबर्ट के यिन इस बात को अपोज करता है कि सिर्फ जो है वो क्वालिटेटिव केस स्टडी नहीं होती, बल्कि दूसरी केस स्टडीज भी क्वालिटेटिव और मिक्स तीनों होती हैं तीनों हो सकती हैं, हो हो सकती सकती हैं हैं। लेकिन जी हो रॉबर्ट के सकती यिन हैं जो इस बात का यानी दावेदार है कि दोनों तीनों हो सकती है, वो खुद भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि सिर्फ क्वालिटेटिव ही ज्यादातर होती है, क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा जी कलेक्शन जी यूज जी करना है, तो वो जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, आज के सेशन में जो है फर्दर हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये मेंडले जी नाम के जी सॉफ्टवेयर उम्मीद है वाकिफ होंगे, नहीं होंगे तो फिर किसी और जी जी सेशन में बिल्कुल इसको बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हम यही बुक जो हमने बात की है, एक क्वालिटेटिव इंक्वायरी रिसर्च डिजाइन चूजिंग अमॉन्ग 5 अप्रोचेस, ये क्रिसवेल एंड क्रिसवेल या क्रिसवेल की ये बुक है। लेकिन इसके साथ साथ जो यिन की बुक है वो हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। इसका एडिशन 5 था 2014 में, और 2018 में इसका एडिशन जो है वो 6 हमारे पास आया था। तो इसको जो है अगर हम सामने रखें तो हमारे पास जो है वो काफी चीजें इस तरह मिल सकती हैं। तो इसमें जो है वो हमें फर्दर चीजें जी मिल जी सकती हैं। तो ये मेंडले के थ्रू जो है वो हम इसको ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, बल्कि इसके फर्दर जो है उस पर बात कर सकते हैं। तो आज इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्चर्स में एक बड़ा नाम है शारान मरियम, इसकी बुक को भी एक नज़र हम देख लेते हैं, और इसमें भी ये केस स्टडी की बात करती है। लेकिन केस स्टडी से पहले जो है वो इनका कुछ ये मरियम केस स्टडी है, मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ है, हम इसको जस्ट क्लिक करते हैं। तो ये भी जो है वो एम्फसाइज करती हैं कि रिसर्च में क्वालिटेटिव केस स्टडी पे ज़्यादा इनका जोर है।
के मुताबिक जो है वो हमारे पास जो रिसर्च मेथड्स हैं वो तकरीबन 6 किस्म के हैं, तो उसको जो है वो इसमें कहा जाता है 6 कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये हमें इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमें मिल जाएगा कि ये शारान मरियम हमें पेज नंबर समथिंग पर बताती हैं कि तकरीबन 6 जो है वो मेथड्स के क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं, और उनमें जो है वो एक प्रोमिनेंट मेथड जो है वो केस स्टडी मेथड है। तो सर मैं जब भी एक हम एक सवाल कर रहा रिसर्च, था, मैं अपने थीसिस से मुतालिक, मैं अपने जी जी, थीसिस से मुतालिक सवाल कर सकता हूँ ना? अभी जैसे ये रिकॉर्डिंग शायद पब्लिक होगी, तो अब आप देख लें। अगर वैसे हम इसको एंड करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैं चाह रहा हूँ चले, ये एक ठीक है, डायग्राम आपको ठीक है, बता दूं, ठीक। और उसको आप अपने उसमें रेफर भी कर सकते हैं, और बड़े काम की है ग्राउंडेड थ्योरी और दूसरी। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, मैं मेरे ख्याल में एक जिंदा रिसर्च है। ये आप रियल लाइफ सिनेरियोज में बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जिंदगी में रिसर्च ही कर रहे होते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। कुछ ना कुछ जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं, दिस इज रिव्यू, एंड रिव्यू इज आल्सो वन टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। और हम जो है लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो दिस इज इंटरव्यूज। तो अगर हम जो काम कर रहे हैं, हम उनके तरीक़ेकार भी हमें थोड़ा सा पते हों, उनको किस तरह हमें डॉक्यूमेंट करना है वो चीज़ें पता हों, तो उस सूरत में जो है ये हमारे लिए एक यानी जो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए रिसर्च बन सकती हैं, और हम अपनी बहुत काम की चीज़ें दुनिया के सामने जो है वो प्रेजेंट अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। जैसे ये डायग्राम में बेसिकली दिखाना चाह रहा था। उम्मीद है मेरी ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। इसको अगर हम फ़ोकस करें, ये शारान मरियम की मैं जी, बुक आपको बता देता हूँ। ये पेज नंबर 42 पे शारान बी मरियम की बुक का नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च अ गाइड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन 2016। और इसमें जो है मरियम एंड टिजरिल ये दो राइटर हैं इसके, और उसमें जो है ये बात स्टार्ट करती हैं कि पेज नंबर 42 से, कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है वो बेसिकली 5 मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की रिसर्च आपके पास ऑप्शंस हैं। जी, उनमें से क्वालिटेटिव केस स्टडी है, और केस स्टडी ये डिफाइन करती है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम। एक बाउंडेड सिस्टम के अंदर जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल का, किसी फर्द का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, और इसी तरह दीगर। तो फर्दर जो है हमारे पास अगर देखें तो ये 5 दीगर और एक बेसिक। बेसिक से जो है ये मुराद ये लेती हैं कि आप नॉर्मल क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें आप बाकी पांचों यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको जनरलाइज रख रहे हैं। तो ये बड़े काम की ये किताब बड़ी आसान सी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर मुझे बहुत आसान सी किताब लगी, शारान बी मरियम की। और ये 1989 से जो है ये लिखती आ रही है इस पे, और आगे चल के ये क्वालिटेटिव फोकस्ड हो गई। पहले ये केस स्टडी फोकस थी, बाद में क्वालिटेटिव फोकस्ड हो गई। तो ये भी जो है वो एक आपके लिए एक मुफीद चीज़ हो सकती है। तो हम हाँ सर, इसको अपलोड कर देंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। जी, ये बुक अगर आप अपलोड कर दें वहाँ हमारे ये ब्लैक मैं बोर्ड। आपको हैंड ओवर करूँगा, लेकिन इस तरह नहीं, दूसरे तरीके से मैं मेडले के थ्रू आपको शेयर्ड लाइब्रेरी के थ्रू दूँगा। और वो जो है शेयर्ड लाइब्रेरी ऑलरेडी हमने पहले बात की थी। फर्दर अभी अगर कभी मौका हुआ तो हम वो कर लेंगे, वरना मैं ये आपको दे दूँगा, हैंड ओवर कर दूँगा दूसरे तरीके से। वरना ये सिंपल मिल जाती है, वेबसाइट के थ्रू भी मिल जाती है ईज़िली। सही। तो यहाँ पर हम अपनी जो है वो इस बात को जो है इख्तिताम पजीर करते हैं। ये अच्छा, केस स्टडी के अंदर एक और बड़ा नाम है आइजन हार्डेट। ये आइजन हार्डेट जो है वो 1989 में जो है इन्होंने एक लिखा, और बड़ा ज़बरदस्त लिखा, बिल्डिंग थ्योरीज फ्रॉम केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च से आप थ्योरीज भी बिल्ड कर सकते हैं, बाकायदा थ्योरी बना सकते हैं। तो ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दी, और इसकी एक डायग्राम है, ये स्टेप्स इन्होंने दिए हुए। according to Eisenhower 1989, there are multiple steps. We can prepare a case study based theory. So we can develop theory, but this is not a initial researcher task. It Theory development is a very huge task and very bigger task. So
senior researchers or multi experienced researcher can exercise this and use theory building through case study research. So we can use this in advanced levels or in future studies, but not now. तो हम जो है यहाँ इख्तिताम पजीर करेंगे अपनी इस बात को कि हम जो है वो क्वालिटेटिव केस स्टडी थोड़ा बहुत जो है मुख्तलिफ अप्रोचेस के साथ मुख्तलिफ राइटर्स के साथ जो है वो उनको जान गए हैं, थोड़ा सा हमने समझ लिया है। तो रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर पजीर होगी। थैंक यू एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।